My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another practice session for XGMT examination. And you can download the PDF from Mathological, practice it first, then watch the solutions, or you can directly watch the solutions, the practice session, and pause during each particular question. So first question, on January 1, 2004, two new societies S1 and S2 are formed, each with N members. On the first day of each subsequent month, S1 adds B members while S2 multiplies its current number of members by a constant factor R. Both the societies have the same number of members on July 2, 2004. If B is equal to 10.5 N, then what is the value of R? R का value क्या होगा इस केस में? So there are two societies S1 and S2. For S1 and S2 both, they are starting with N members each. On the first day of each subsequent month, S1 adds B members while S2 multiplies its current number of members by a constant factor R. So this is the situation on January 1st. So on the Feb 1st, S1 will add B members. So number of members in S1 will be N plus B. And S2 number of members will be N into R. On March 1st, S1 will be adding B members further. So N plus 2B will be number of members. And for S2, this will be N into R square. So basically for S1, this is AP, arithmetic progression बन रहा है, और S2 के लिए this is geometric progression of terms. Isn't it so? So ultimately July 2, 2004 में क्या नंबर होगा? Number of members का 6 months after we are seeing. So after 6 months, number of members in S1 will be N plus 6 times V, and number of members in S2 will be N into R to the power 6. And question is saying both the societies have the same number of members on July 2, 2004. Start भी same numbers थे, so now they are also same. So N plus 6B is equal to N into R to the power 6, and B is equal to 10.5 times N. So N plus 6 into 10.5 times N, this is equal to N into R to the power 6. And 6 into 10.5 is 60 plus 3, so 63. So N plus 63N, which is equal to 64 times N, which is N into R to the power 6. So basically R to the power 6 is equal to 64. And 64 is 2 to the power 6, and hence R will be equal to 2. Option A will be the answer. R will be equal to 2. Clear है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Question number 2. The product of integers a, b, c and d is 3094, and it is also given that 1 is less than a is less than b is less than c and c is less than d. So all a, b, c, d are positive natural numbers, basically positive numbers, positive integers. ठीक है, natural numbers a, b, c, d, और order भी given है. A is smallest number and d is the largest number. If m is the smallest number with number of factors equal to b and n is the smallest number with number of factors equal to c, then we have to find the sum of m plus n. M और n का सम क्या होगा? So first of all we need to find out what are the values of a, b, c, d. फैक्टराइज करना पड़ेगा उसके लिए 3094 को. So this is an even number, so definitely one factor is 2. 2 into 1547. So जैसे ही वैल्यू हमारा 2 आ गया, so definitely a is equal to 2 because a smallest है और 2 से छोटा तो फैक्टर मिलेगा नहीं. Okay, so 2 into 1547. Now 1547, 5 plus 1 6 plus 4 10 plus 7 17, not divisible by 3. 3 से divisible नहीं है, 5 से divisible भी नहीं होगा, 5 से divisible नहीं होगा, 7 से divisible है ये. So this will be 2 into 7 into 221, or 221 is 13 into 17. So this will be 2 into 7 into 13 into 17. Hence B will be equal to 7, C will be equal to 13 and D will be equal to 17. Now m is the smallest number with number of factors equal to b. So m is the number which has 7 factors, and this is smallest such number with 7 factors. So क्या number होना चाहिए? Since the number of factors is 7 and 7 is a prime number, so definitely number of factors क्या होगा? This number could be some prime number to the power 6.
इस फॉर्मेट में होगा, सम प्राइम नंबर टू द पावर 6, तभी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 7 हो गए, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल बी 6 + 1 7, और स्मॉलेस्ट है तो दैट प्राइम नंबर मस्ट बी द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज 2 to the power 6 will be the number. Similarly, n has 13 factors. So this will be some prime number to the power 13 भी prime number है तो some prime number to the power 12 and smallest number है तो this will be 2 to the power 12. हाँ, इंस्टेड ऑफ अगर 13 फैक्टर्स के बजाय लेट अस से 12 फैक्टर्स होता तब मल्टीपल केसेस बनते, अगर जस्ट इन केस 12 फैक्टर्स होता तब मल्टीपल केसेस बनते, बिकॉज देन इट वुड हैव बीन सम प्राइम नंबर टू द पावर 11, ये हो सकता था, या फिर 12 इज ऑल्सो 4 × 3 और 2 × 6, तो अगर 4 × 3 के हिसाब से एज्यूम करें तो सम प्राइम नंबर टू द पावर 3 इंटू सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 2, तो 4 × 3 तब भी 12 फैक्टर्स होंगे, या फिर 2 × 6 के हिसाब से एज्यूम करें तो दिस विल बी सम प्राइम नंबर टू द पावर 1 इंटू सम अदर प्राइम नंबर टू द पावर 5, तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस बनेंगे अगर ऐसा कोई केस होता है, ठीक है। बट एट प्रेजेंट हमारे क्वेश्चन में क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 to the power 6 फॉर m is equal to 2 to the power 6 and n is equal to 2 to the power 12. 2 to the power 12 is 4096, 2 to the power 6 is 64, so m plus n will be 4160, 4160. This will be our answer. Option C will be the answer. Clear? Okay. Next question. Shyam went from Delhi to Shimla via Chandigarh by car. The distance from Delhi to Chandigarh is 3 by 4 times the distance from Chandigarh to Shimla. The average speed from Delhi to Chandigarh was 1.5 as much as that from Chandigarh to Shimla. If the average speed for the entire journey was 49 km/h, then what was the average speed from Chandigarh to Shimla? Average speed from Chandigarh to Shimla. Okay. So Shyam went from Delhi to Chandigarh to Shimla, and distance from Delhi to Chandigarh is 3 by 4 times the distance from Chandigarh to Shimla. So if the distance from Chandigarh to Shimla is 4x, so distance from Delhi to Chandigarh is 3x. Okay. Secondly, average speed from Delhi to Chandigarh was 1.5 times as much from the Chandigarh to Shimla. 1.5 यानी कि 3 by 2 times होगा. So if speed from Chandigarh to Shimla is 2s या 2y मान लेते हैं, 2y है speed, this was the distance, and if speed is 2y from Chandigarh to Shimla, then from Delhi to Chandigarh the speed will be 3y, and average speed is given for entire journey, that is 49 km/h. Average speed will be total distance by total time, TD by TT, total distance by total time. Total distance is 7x, 3x plus 4x, 7x. Total time will be distance by speed. So from Delhi to Chandigarh, distance is 3x, speed is 3y, so time will be 3x by 3y. Plus from Chandigarh to Shimla, distance is 4x, speed is 2y, so 4x by 2y. 3x by 3y will be x by y, this is 2x by y. So effectively average speed आ जाएगा 7x upon 3x upon y. x से x cancel out हो जाएगा, this will be 7y by 3. So average speed is 7y upon 3, which is given as 49. So यहाँ से y आ जाएगा हमारा equal to 21. y 21 आ गया, और क्वेश्चन पूछ रहा है एवरेज स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला, दैट इज 2y, तो 2y विल बी इक्वल टू 42. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. 42 विल बी द स्पीड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. One man can do as much work in one day as a woman can do in 2 days. A child does 1/3 the work in a day as a woman. If an estate owner hires 39 pairs of hands, men, women, and children in the ratio 6:5:2 and pays them in all rupees 1113 at the end of the day's work, what must be the daily wages of a child if the wages are proportional to the amount of work done? So for man and woman, efficiency का ratio क्या आ जाएगा? One man can do as much work in 1 day as woman can do in 2 days. So definitely efficiency का रेशियो 2:1 होगा. जितना वर्क वुमन 2 days में करती है उतना मैन 1 दिन में कर लेता है. 2:1 आ जाएगा efficiency का रेशियो. A child does 1/3 the work in a day as a woman. तो चाइल्ड भी इक्वेशन में इन्वॉल्व है. चाइल्ड की एफिशिएंसी अगर हम, बिकॉज चाइल्ड सबसे कम वर्क कर रहा है, लेट अस अज्यूम एफिशिएंसी ऑफ चाइल्ड इक्वल टू 1.
सो अ चाइल्ड डज 1/3 द वर्क इन अ डे एज अ वुमन. तो चाइल्ड अगर 1/3 वर्क कर रहा है और 1 यूनिट वर्क कर रहा है तो वुमन मस्ट बी डूइंग 3 टाइम्स द वर्क. सो 3 यूनिट्स वर्क करेगी. और वुमन का 2 डेज का वर्क इज इक्वल टू मैन का 1 डे का वर्क. तो वुमन का 2 डेज का वर्क विल बी 3 into 2 6 एंड दैट विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ अ मैन in 1 day or work done by a man in 1 day. If one state owner has 39 pairs of hands, तो total number of men, women and child का ratio given है 6:5:2. 6:5:2 and total number is 39. 6 plus 5 plus 2 13 units की वैल्यू हमें कितने given है 39. So 1 unit must be equal to 3 and if 1 unit is 3 तो number of men हो जाएगा 18, number of women will be 15 and number of children will be 6 and total payment for 1 day is rupees 1113 and payment will be in proportion to the amount of work. तो amount of work निकाल लेते हैं. कितना वर्क करेंगे मैन 6 एफिशिएंसी है एक पर्सन की, टोटल है 18 into 6 108 यूनिट्स प्लस 15 into 3 45 यूनिट्स वर्क डन बाई women प्लस 6 into 1 6 यूनिट्स वर्क डन बाई चिल्ड्रन. टोटल वर्क होगा 108 प्लस 45 153 प्लस 6 159. ओके और 159 यूनिट्स वर्क हुआ है एंड दैट फॉर पेमेंट फॉर दैट वर्क इज 1113. 9 7 63 यूनिट डेट पे आ रहा है 3 7 टाइम्स जाएगा. 1 यूनिट इज इक्वल टू 7 नाउ. ठीक है 150 into 7 1050 9 into 7 63 तो 1113 7 टाइम्स जाएगा. तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आ गई या 1 यूनिट के लिए पेमेंट हो गया 7 रुपीज पर यूनिट. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि व्हाट विल बी डेली वेज ऑफ अ चाइल्ड. और चाइल्ड का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट. तो डेली वेज ऑफ अ चाइल्ड विल बी इक्वल टू 7 रुपीज. इन कंपेरिजन अगर क्वेश्चन पूछता आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी कि डेली वेज ऑफ अ वुमन दैट विल बी 21 रुपीज and that for a man that is equal to 42 rupees. Okay, next question. If the harmonic mean between two positive numbers is to their geometric mean is 12:13, then number of numbers could be in what ratio? Harmonic mean at geometric mean का ratio है 12:13. Harmonic mean of two numbers a and b will be equal to 2ab upon a plus b and geometric mean will be square root of a into b. Or ratio of these two is 12:13. So 2ab upon a plus b divided by root ab. So this will be equal to 2 times root ab because ab upon root ab will be square root of ab. So 2 times square root of ab divided by a plus b. This is given as 12:13. 12/13. 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा बचा 6/13. रूट ए बी अपॉन ए प्लस बी दिस इज 6/13. ठीक है और क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम ए इंटू बी का सो ए इंटू बी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इफ ए इंटू बी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विल बी इरेशनल. और हमारा रेशियो में इरेशनल तो वैल्यूज आ नहीं रही है, रेशियो में सारी वैल्यूज इंटीजर में आ रही है. ठीक है तो डेफिनेटली ए इंटू बी मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इज दैट इट? क्या है क्लियर है? और अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो बस ऑप्शंस में चेक कर लो क्योंकि ऑप्शंस में हम क्या ले रहे हैं नंबर्स का ही रेशियो है. तो 12 into 13 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. 1/12 into 1/13 अगेन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा. 4 into 9 36 दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो दैट शुड बी द आंसर. दैट शुड बी द आंसर. क्लियर है? बाकी सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो अब इसके बाद में. सो 13 टाइम्स रूट ए बी दिस इज इक्वल टू 6a plus 6b. So 6a plus 6b is equal to 13 times root ab. बट अभी भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स को एक में कन्वर्ट करते हैं. कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड होल इक्वेशन बाई b. डिवाइड बाई b. So this becomes 13 times root ab by b. So this becomes root of a upon b. This is equal to 6 into a upon b plus 6. Now if we assume कि root of a upon b this is equal to some variable x, and if this is equal to x, so 13x is equal to 6 times x square plus 6
So 6x square minus 13x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. 6 इंटू 6 प्रोडक्ट आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है हमारा 36 और सम आ रहा है 13. 9 इंटू 4, तो दिस विल बी 6x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा 3x, एक सेकेंड, 3x कॉमन लोगे, 3x इंटू 2x माइनस 3, 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, सही तो आ रहा था. 3x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 0. ये वैल्यू 0 आएगा. सो ईदर ऑफ दीज टू टर्म्स विल बी 0. तो या तो x हमारा इक्वल टू 2/3 होगा और 3/2 होगा. सो रूट ऑफ a अपॉन b विल ईदर बी 2/3 और 3/2. ओके, रूट ऑफ a बाई b विल बी इक्वल टू ईदर 2/3 और रूट ऑफ a बाई b विल बी इक्वल टू 3/2. बट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a बाई b का रेशियो स्क्वायर कर दो, तो a बाई b विल ईदर बी 4/9 और 9/4. So option C will be the answer. Okay, 4/9 will be the answer. Clear? Next question. If log of this particular expression is equal to 0, then we have to find the value of x. This is equal to 0. So basically, log of this value, this expression, this is equal to 0. And that implies that 7 to the power 0 must be equal to this value. Because if log of b on the base a, this is equal to x, that implies a to the power x is equal to b. ठीक है, और 7 to the power 0 will be equal to 1. So 7 to the power 0 equal to 1, and that one is equal to log of root of x plus 5 plus root of x on the base 5. So that implies 5 to the power 1 will be equal to this value. यानी कि root of x plus 5 plus root of x, this is equal to 5. आप चाहे तो वैल्यूज पुट करके देख सकते हो, क्योंकि root of x plus 5 plus root of x that is coming out to be equal to 5, यानी कि एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है, तो x probably is an integer, isn't it so? और वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो. x इक्वल टू अगर तुमने पुट किया, क्योंकि दिस शुड बी 1 + 4 या 2 + 3, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा, तो इफ 2 + 3 है तो root of x must be 2, this must be 3. So x will be equal to 4 और सेटिस्फाई कर रहा है x equal to 4, तो x equal to 4 आंसर आ जाएगा. और क्वेश्चन में पूछा है वैल्यू ऑफ x क्या होगा, दैट विल बी ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, बिकॉज x equal to 4. ओके, अदरवाइज सॉल्व करना होगा तो कर सकते हो. रूट ऑफ x plus 5 इज इक्वल टू 5 माइनस रूट एक्स, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो दिस बिकम्स x plus 5 इज इक्वल टू 25 प्लस x माइनस 10 रूट एक्स. x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. 10 टाइम्स रूट एक्स इज इक्वल टू 20. रूट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 4. ओके, क्लियर है. नेक्स्ट वन, a rod is cut into 3 equal parts. The resulting portions are then cut into 12, 18 and 32 equal parts respectively. If each of the resulting portions have integer length, then minimum length of the rod क्या होगा. रॉड को पहले तो 3 इक्वल पार्ट्स में हमने कट किया, फिर ईच पर्टिकुलर सेक्शन इज कट इनटू, एक पर्टिकुलर पार्ट को हमने फर्स्ट पार्ट को लेटर से कट किया 12 पार्ट्स में, सेकंड को कट किया 18 पार्ट्स में, थर्ड को कट किया 32 पार्ट्स में, एंड ईच ऑफ दीज स्मॉलर पोर्शंस आर नाउ हैविंग इंटीजर लेंथ. सो अगर लेंथ इंटीजर में है, यानी कि जो इनिशियल लेंथ था हमारा आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद का जो लेंथ था हमारा, दैट मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 12, 18 एंड 32. लेट अस से इनिशियली लेंथ था 3x, ठीक है, 3x था. So we've cut into 3 parts, x, x and x. Now this x part is cut into 12 parts. This x part is cut into 18 parts and this x part is cut into 32 parts. And since still each of the resulting portions have integer length, so definitely x must be a multiple of 12, 18 and 32. Isn't it so? एंड इफ दिस हमारे 12, 18 एंड 32 और मिनिमम लेंथ ऑफ रॉड चाहिए, तो मिनिमम लेंथ होगा हमारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स मिनिमम विल बी एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज, एलसीएम ऑफ 12, 18, 32.
सो दैट विल बी 12 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 36. 36 इज 4 into 9, तो 32 इज 4 into 8, तो 4 into 8 into 9, दैट विल बी द आंसर. 36 into 8, this will be 240, 48, 288 सेंटीमीटर द वैल्यू ऑफ एक्स. बट क्वेश्चन पूछ रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द रॉड यानी 3x की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3x का मिनिमम वैल्यू आ जाएगा हमारा इक्वल टू 3 into 288, 864 सेंटीमीटर्स. दिस विल बी द आंसर. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. Karan and Arjun run a 100 meters race where Karan beats Arjun by 10 meters. To do a favor to Arjun, Karan starts 10 meters behind the starting line in a second 100-meter race. They both run at their earlier speeds. Which of the following is true in connection with the second race? There is a 100-meter race between Karan and Arjun where Karan beats Arjun by 100 meters. तो Karan तो दोनों साथ में स्टार्ट किया. Karan completed race of 100 meters, but in the same time Arjun कितना पीछे रह गया? Arjun was 10 meters behind. तो Karan completed total 100 meters distance. In the same time Arjun completed 90 meters का distance. तो for same time between Karan and Arjun distance traveled का रेशियो आ गया 100:90 यानी 10:9. तो डिस्टेंस ट्रैवल का रेशियो 10:9 और यही सेम स्पीड का भी रेशियो होगा बिकॉज टाइम सेम है. तो अगर टाइम सेम है डिस्टेंस और स्पीड प्रोपोर्शनल होगा तो स्पीड विल ऑल्सो बी 10:9. सो बिटवीन Karan and Arjun रेशियो ऑफ स्पीड इज 10:9. In the second race, since Karan knows that he is faster, so what he is doing that he is starting 10 meters behind the starting line. ठीक है, so Karan ने start किया 10 meters behind the starting line. So now to complete the race Karan has to travel total 110 meters. इस बार Karan को travel करना है 110 meters. And Arjun will be starting from the starting point. अर्जुन को ट्रैवल करना है 100 मीटर्स और स्पीड के रेशियो में, क्योंकि अभी भी सेम टाइम ट्रैवल कर रहे हैं तो रेशियो तो स्पीड के रेशियो में डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा. ठीक है, सो इफ Karan इज ट्रैवलिंग टोटल 110 मीटर्स और Karan का स्पीड है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स है. ओके, 110 मीटर्स ट्रैवल कर रहा है 10 into 11, विच इंप्लाइज दैट इन द सेम टाइम इफ Karan इज ट्रैवलिंग 10 मीटर्स अर्जुन विल बी ट्रैवलिंग 9 मीटर्स बिकॉज 10:9 का रेशियो है. तो 110 मीटर्स ट्रैवल करेगा 10 into 11, 110 हो गया. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय अर्जुन विल बी 9 into 11 इन दैट सेम टाइम, यही 99 मीटर्स होगा. रेशियो अभी भी आ रहा है 10:9. तो 110 मीटर्स ट्रैवल किया Karan ने, Karan पहुंच गया फिनिशिंग पॉइंट पे, बट अर्जुन हैज ट्रैवल्ड 99 मीटर्स इंस्टेड. सो 1 मीटर शॉर्ट रह गया. अर्जुन विल लूज द रेस स्टिल बाय 1 मीटर्स. सो Karan वाज स्मार्ट, उसने कैलकुलेशन करके उतना ही अपने लिए डिस्टेंस चूज किया जिससे इसके बाद भी वो जीते, है कि नहीं? भाई 20 मीटर चूज कर लेता तो हार जाता. ओके, सो आंसर इज ऑप्शन डी, Karan बीट्स अर्जुन स्टिल बट बाय 1 मीटर ओनली दिस टाइम. ओके, ठीक है. The number of votes not cast for the Praja Party increased by 25% in the national general election over those not cast for it in the previous assembly polls. And the Praja Party lost by a majority twice as large as that by which it had won the assembly polls. If a total 2,60,000 people voted each time, how many voted for the Praja Party in the assembly elections? कितनों ने वोट किया प्रजा पार्टी के लिए इन द असेंबली इलेक्शंस? हुआ क्या था इन असेंबली इलेक्शंस? द प्रजा पार्टी won the assembly elections, isn't it so? And in the general elections, the national general election, Praja Party lost. Okay, so for the Praja Party, either people voted for that party or not voted. दो ही केसेस बनेंगे क्योंकि यहाँ वैलिड इनवैलिड वाला बाकी कोई नाटक नहीं है. ठीक है, और क्वेश्चन इज सेइंग नंबर ऑफ वोट्स नॉट कास्ट फॉर द प्रजा पार्टी इंक्रीज बाय 25%. तो वोट्स नॉट कास्ट बाय फॉर प्रजा पार्टी यानी नॉट वोटेड, नॉट वोटेड फॉर. ठीक है ना, मतलब ये हुआ कि प्रजा पार्टी के लिए वोट नहीं किया, वोट तो किया उन्होंने बट नॉट वोटेड फॉर प्रजा पार्टी. एंड दैट इंक्रीज बाय 25% इन द नेशनल जनरल इलेक्शन एज कंपेरिजन टू असेंबली पोल्स. तो पहले असेंबली पोल का डिटेल लिखते हैं. So if assembly polls में number of persons who have not voted for Praja Party, if that was equal to 4x, क्योंकि 25% यानी 1/4 से इंक्रीज कर रहे हैं. So in the national general election क्या नंबर होगा?
दैट विल बी 5x, 4x प्लस x 5x हो जाएगा, नॉट वोटेड वाला नंबर. ओके, एंड सिंस टोटल people who have voted is 2,60,000 यानी 260,000. सो असेंबली में कितने लोगों ने वोट किया होगा? 260,000 माइनस 4x, और नेशनल जनरल इलेक्शन में 260,000 माइनस 5x. नाउ इंपॉर्टेंट इज द सेकेंड लाइन दैट द प्रजा पार्टी लॉस्ट बाई ए मेजॉरिटी ट्वाइस एज लार्ज एज दैट बाई विच इट हैड वॉन द असेंबली पोल्स. तो असेंबली पोल्स में प्रजा पार्टी जीती थी. ठीक है, असेंबली पोल्स में प्रजा पार्टी वॉन जीती थी. तो जीतेगी तो विक्ट्री मार्जिन क्या होगा? दैट विल बी नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय इट माइनस नंबर ऑफ पीपल हु हैव नॉट वोटेड. ये विक्ट्री मार्जिन होगा. और डेफिनेटली क्योंकि जीती थी तो नंबर ऑफ वोट्स हायर होगा, तभी तो. इजंट इट सो? बट नेशनल जनरल इलेक्शन में इट हैज लॉस्ट, तो नंबर ऑफ वोट्स नॉट वोटेड विल बी हायर. जिन्होंने अगेंस्ट वोट किया होगा वो वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी. तो असेंबली में कितना डिफरेंस आएगा? मार्जिन आएगा हमारा 260,000. ठीक है, चाहो तो 000 लिख दो या ऐसे ही लिख दिया. ठीक है, 260 माइनस 4x माइनस 4x, दिस विल बी मार्जिन इन द असेंबली इलेक्शंस, विक्ट्री मार्जिन. और इसका डबल मार्जिन रहा, डबल डिफरेंस रहा लॉस का इन द नेशनल जनरल इलेक्शंस. तो ट्वाइस ऑफ दैट विल बी इक्वल टू 5x माइनस 260k माइनस 5x. ठीक है, सो दिस बिकम्स 260k माइनस 8x और डबल दैट ऑफ यानी 520k माइनस 16x, एंड दैट इज इक्वल टू 5x प्लस 5x 10x माइनस 260k, एंड दिस बिकम्स 26x इज इक्वल टू 780k या 780,000, एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 30,000. x came out to be equal to 30,000. क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी वोटेड फॉर द प्रजा पार्टी इन द असेंबली इलेक्शंस. असेंबली इलेक्शन में कितना वोटिंग किया? 260k माइनस 4x की वैल्यू पूछ रहा है, तो दैट विल बी 260k माइनस 4x विल बी 120k, एंड हेंस 140k 140,000 विल बी द आंसर. ऑप्शन सी, 140,000 विल बी द आंसर. क्लियर है? ठीक है, ओके. अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन में ऑप्शंस को भी हम यूज कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे हाउ मेनी वोटेड फॉर द प्रजा पार्टी इन द असेंबली इलेक्शंस, एंड प्रजा पार्टी वॉन द असेंबली इलेक्शंस. और या तो लोगों ने वोट किया या नहीं वोट किया. एंड इफ प्रजा पार्टी वॉन द असेंबली इलेक्शंस देन डेफिनेटली नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई, क्योंकि हमसे विक्ट्री मार्जिन में यही सेम बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाई प्रजा पार्टी मस्ट हैव बीन ग्रेटर देन नंबर ऑफ वोट्स नॉट रिसीव्ड और अगेंस्ट द प्रजा पार्टी. यानी कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय प्रजा पार्टी मस्ट हैव बीन 50 मोर देन 50%. 50% ज्यादा रहे होंगे, यानी कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय प्रजा पार्टी विल बी ग्रेटर देन 1,30,000 से तो ज्यादा बड़ा नंबर होगा. तभी तो, बिकॉज असेंबली इलेक्शन में तो जीती थी. तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता है, फिर ऑप्शन डी आंसर नहीं हो सकता है, तो बी और सी में से कोई एक आंसर होगा. अब कोई भी एक वैल्यू से स्टार्ट कर लो, किसी भी एक वैल्यू को ले लो, क्योंकि जिसको ले लोगे अगर वो सेटिस्फाई नहीं किया तो नेक्स्ट वाला आंसर हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल हमने स्टार्ट किया 1,40,000 से, कि नंबर ऑफ वोट्स रिसीव बाय प्रजा पार्टी in assembly elections is 1,40,000. So if 1,40,000 are votes received by Praja Party, so remaining votes हो गया 1,20,000 which must be against. तो विक्ट्री मार्जिन कितना होगा? मार्जिन will be 20,000. एंड इन नेशनल जनरल असेंबली, नेशनल जनरल इलेक्शंस, नॉट असेंबली, असेंबली में तो हो गया, नेशनल जनरल में 25% वोट्स अगेंस्ट इंक्रीज हुआ था. तो अगेंस्ट में ऑलरेडी 1,20,000 है, सो नाउ दिस विल बी 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000, तो 1,10,000 विल बी वोट्स फॉर प्रजा पार्टी. तो मार्जिन विल बी 40,000 दिस टाइम, एंड प्रजा पार्टी इज लूजिंग. तो यस, मार्जिन डबल हो रहा है, सो दिस इज करेक्ट इक्वेशन, एंड डेफिनेटली वोट्स फॉर विल बी 1,40,000 एंड ऑप्शन सी विल बी द आंसर. अगर 1,50,000 से स्टार्ट करोगे तो वहां जस्ट अपोजिट मामला होगा. ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. AB is the diameter of the given circle, while points C and D lie on the circumference as shown. If AB is 15 cm, AC is 12, BD is 9, find the area. ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, बस पाइथागोरस अप्लाई करना है. AB is 15 and AB is the diameter. So if AB is the diameter of the circle, so हमारा जो अपर पोर्शन है that is also a semicircle,
और लोअर पोर्शन इज ऑल्सो सेमी सर्कल, बोथ आर सेमी सर्कल. एंड जब भी सेमी सर्कल देखो हमेशा क्लिक करना चाहिए, सेमी सर्कल इंप्लाइज 90 डिग्रीज एंगल. एनी एंगल मेड इन अ सेमी सर्कल, ठीक है, एज लॉन्ग एज सर्कमफरेंस पे बन रहा है दैट एंगल, सो दैट विल ऑलवेज बी 90 डिग्रीज. राइट एंगल, तो दिस विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल. सिमिलरली दिस विल ऑल्सो बी अ राइट एंगल ट्रायंगल, बोथ आर राइट एंगल ट्रायंगल. तो हमारा हाइपोटेन्यूज इज 15, diameter is 15, hypotenuse is 15, AB is 15, AC is 12. 15 है, 12 है, तो थर्ड साइड मस्ट बी 9 बिकॉज 3:5:4:5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है. ठीक है, 3:4:5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है यहाँ पे. भाई एक साइड हमें दिख गया 15, एक साइड दिख गया 12, तो 4:5 का रेशियो आ रहा है. थर्ड साइड मस्ट बी 3 यूनिट्स विच इज इक्वल टू 9. सिमिलरली BD इज 9, सो यहाँ पे भी 3:4:5 वाला ट्रिपलेट बन रहा है. 15, 9, दिस मस्ट बी 12, दिस विल बी 12. ओके, तो एरिया तो अब इजी है. एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB. और ट्रायंगल ACB का एरिया 1/2 इंटू 12 इंटू 9, और यही सेम एरिया ट्रायंगल ADB का भी है. बोथ आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, सो 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 12 इंटू 9 इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन डी इज द आंसर, 108. Okay, is that clear? Next question. A father and his son are waiting at a bus stop in the evening. There is a lamp post behind them. The lamp post, the father and his son stand on the same straight line. The father observes that the shadow of his head and his son's head are incident at the same point on the ground. If the height of the lamp post, the father and his son are 6 meters, 1.8 meters and 0.9 meters respectively, and the father is standing 2.1 meters away from the lamp post, then how far is the son standing from the father? Height of the lamp post is 6 meters. And father observes the shadow of his head and his son's head are incident at the same point on the ground. Let us say this is the lamp post of 6 meters. Okay. And then this is the father. ठीक है, तो लैम्प पोस्ट से लाइट आ रहा है, लाइट आ रहा है लैम्प पोस्ट से. ठीक है, और उसी लाइट की वजह से शैडो बनेगा फादर का, और फादर का शैडो, लेट अस से दिस इज द शैडो, ये हेड का शैडो बन रहा है अल्टीमेटली. ठीक है, क्लियर है? सो कुछ कुछ ऐसा शैडो बनेगा, समझ लो. ओके, सिमिलरली सन इज स्टैंडिंग, लेट अस से दिस इज द वेयर सन इज स्टैंडिंग, और उसका भी शैडो एग्जैक्टली वही बन रहा है फॉर बोथ, तो दे मस्ट बी इन द सेम लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन. ओके, लैम्प एंड द टू हेड्स. क्या है? क्लियर है? Additionally, this is given that height of lamp is 6 meters, height of father is 1.8 meters, this height is 1.8 meters, and height of the son is 0.9 meters. Then father is standing 2.1 meters away from the lamp post, so this distance is 2.1 meters of the father. 2.1 meters. Let us assume that this distance is x, distance of sun from the shadow of the head. ठीक है, so from that point the distance is x meters. So now these two triangles, let us say this point is, let us say this is P, this is A, this is B, this is C, this is D, E and F. So the छोटू वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल PAF, ये तो फादर और सन है, triangle PAF, this should be similar to triangle PBE and this should also be similar to triangle PCD, isn't it so? ये सारे triangle similar होंगे because lamp post, father, son, ये सारी lines parallel हैं, all these lines are parallel, isn't it so? और angle तो common है हमारा, एक lines parallel है तो बाकी angles भी हमारे same आ रहे हैं respectively. So basically all these triangles are similar triangles, and if that is so, तो father का height है 1.8, सन का हाइट है 0.9,
So basically FA upon AP, this will be equal to EB upon BP. और FA और EB का रेशियो क्या है 1:2, तो वही सेम रेशियो आएगा हमारा PA और PB का भी 1:2. तो इफ PA इज x, PB विल बी 2x, या फिर AB हमारा इक्वल टू x आ जाएगा. क्या है, क्लियर है? ठीक है, इज दैट पार्ट क्लियर? बेसिकली FA इज इक्वल टू 0.9 अपॉन x, दिस विल बी इक्वल टू EB विच इज 1.8 अपॉन BP. सो BP विल बी 2x, और BP 2x है तो AB भी x आ जाएगा हमारा. ओके, एंड बाय द सेम लॉजिक यही सेम रेशियो हमारा आएगा 6/PC या फिर DC/PC, बिकॉज ये भी तो ट्रायंगल सिमिलर है. सो वी कैन से दैट DC अपॉन PC, दिस विल बी इक्वल टू FA अपॉन PA, यानी कि 6/PC, दिस इज इक्वल टू FA विच इज 0.9 अपॉन x. सो यहां से हमें वैल्यू मिल जाएगा किसका, PC का वैल्यू x के टर्म्स में मिल जाएगा. तो PC विल बी इक्वल टू 0.9, डेसिमल हटाओगे 60, तो 3PC विल बी इक्वल टू 60x/9 या 20x/3. PC comes out to be 20x/3 and which is equal to 2.1 plus 2x. सब्ट्रैक्ट कर दोगे यानी कि 14x अपॉन 3 इज इक्वल टू 2.1. डेसिमल हटा के डिवाइड बाई 10 हो जाएगा. एंड हेंस x विल बी इक्वल टू 20x is 9, तो x will be equal to 9/20, which is 0.45 meters. Option D will be the answer. और क्वेश्चन में हमसे क्या लेंथ पूछा है, हाउ फार इज द सन स्टैंडिंग फ्रॉम द फादर. तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड फादर इज ऑल्सो इक्वल टू x. ये डिस्टेंस भी x ही है. सो x इज इक्वल टू 0.45 meters will be the answer. Option D will be the answer. क्लियर है? ओके. Next question, a man buys spirit at rupees 60 per liter, adds water to it and then sells it at rupees 75 per liter. What is the ratio of spirit to water if his profit in the deal is 37.5%? Profit in the deal is 37.5%. 37.5% is 3/8. So if 8 is the CP, 3 will be the profit. 11 units will be the selling price, और selling price की वैल्यू हमें गिवन है. तो CP अगर हमारा 8 यूनिट्स है, प्रॉफिट विल बी 3 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस विल बी 11 यूनिट्स, और 11 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 75. तो यहाँ से हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी, और कॉस्ट प्राइस ऑफ स्पिरिट इज रुपीज 60. वाटर तो फ्री है, 0 है, और दोनों को मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना रहे हैं जिसमें कि 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है व्हेन इट इज बीइंग सोल्ड एट रुपीज 75. तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 75 इंटू 8/11, विच इज 600/11 रुपीज पर लीटर. एलिगेशन लगा देते हैं. सो एलिगेशन बिटवीन स्पिरिट एंड वाटर. कॉस्ट प्राइस स्पिरिट इज 60, वाटर का 0 है, एवरेज आ रहा है हमारा 600/11. सो मल्टीप्लाई बाई 11, सारी वैल्यूज को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी 660, दिस इज 600, और 0 तो रहेगा 0 ही. सो 660 माइनस 600 इज 60, 600 माइनस 0 इज 600. तो रेशियो आ गया स्पिरिट और वाटर का 10:1. 600 is to 60 which is 10:1. So spirit and water are mixed in the ratio 10:1. ऑर्डर हमेशा इंपॉर्टेंट है. लास्ट टाइम में क्या पूछा, स्पिरिट और वाटर का रेशियो दैट विल बी 10:1. अगर वाटर स्पिरिट का पूछता 1:10 होता, और उस केस में आंसर ऑप्शन डी हो जाता. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A 14.4 kg gas cylinder runs for 104 hours when the smaller burner on the gas stove is fully opened, while it runs for 80 hours when the larger burner on the gas stove is fully opened. Which of these values are closest to the percentage difference in the usage of gas per hour of the smaller burner over the larger burner? तो गैस सिलेंडर का कैपेसिटी है 14.4 kg, बट इट रन्स फॉर 104 hours when the smaller burner is on the gas stove is fully opened. और जब लार्जर बर्नर को हम ओपन करते हैं तो कितना रन करता है, 80 hours के लिए. तो 104 hours and 80 hours. ठीक है, दैट इज द टाइम फॉर विच द बर्नर्स बर्न रिस्पेक्टिवली.
अब डेफिनेटली बर्नर जब ज़्यादा टाइम के लिए बर्न करेगा तो गैस वो कम बर्न कर रहा होगा कंपैरेटिवली, तभी तो ज़्यादा टाइम के लिए बर्न कर पाया। जब कम टाइम के लिए बर्न करेगा तो दैट मस्ट बी इंप्लाइंग दैट ज़्यादा पर आवर गैस जितना बर्न हो रहा होगा वो ज़्यादा होगा। इज दैट इट सो? यानी कि बेसिकली गैस बर्न पर आवर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन। टाइम और गैस बर्न पर आवर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इज दैट इट सो? तो अगर टाइम का रेशियो आ रहा है 104:80, जो कि सिंप्लीफाई करके 8 से सिंप्लीफाई कर लोगे 13:10 आ जाएगा। तो टाइम का रेशियो आ रहा है 13:10, तो गैस बर्न पर आवर, ठीक है, यूजेज ऑफ गैस, गैस यूजेज पर आवर, दैट विल बी 10:13, ऑपोजिट आएगा, बिकॉज टोटल गैस तो कांस्टेंट है, दोनों केस में सेम है, 14.4 kg ओनली। दैट इज वाई गैस यूजेज पर आवर विल बी 10:13। स्मॉलर और लार्जर बर्नर का क्वेश्चन पूछ रहा है परसेंटेज डिफरेंस इन यूजेज ऑफ गैस पर आवर ऑफ द स्मॉलर बर्नर ओवर द लार्जर बर्नर। तो लार्जर बर्नर अगर 30 यूनिट्स गैस बर्न कर रहा है, स्मॉलर बर्नर बर्न कर रहा है 10 यूनिट्स, यानी कि 3 यूनिट्स लेसर बर्न कर रहा है। तो 3/13 विल बी द परसेंटेज डिफरेंस, और 1/13 आता है 7.7% रफली, तो दिस विल बी 3 इंटू 7.7 या 7.69%। सो आंसर आ जाएगा हमारा 23.1%। ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 23.07। ओके, 1/13 is basically 7.69% or 7.7%. Next question. The cost of leveling and turfing a square field at rupees 160 per hectare is rupees 2624.40. The cost of surrounding it with a railing costing 25 पैसे per meter क्या होगा? लेवलिंग एंड सर्फिंग यानी कि कंप्लीट एरिया को तुम लेवलिंग एंड सर्फिंग कर रहे हो, ठीक है, स्क्वायर फील्ड का, एंड दैट इज रुपीज 160 पर हेक्टेयर। सो 1 हेक्टेयर दिस इक्वल 10,000 मीटर स्क्वायर एंड कॉस्ट इज रुपीज 2624.40। तो यहां से एरिया मिल जाएगा हमको, यहां से पूरा एरिया मिल जाएगा स्क्वायर फील्ड का, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स मिल जाएंगे रुपीज 2624.40 डिवाइड बाई रुपीज 160, नंबर ऑफ हेक्टेयर्स मिल गए, और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर्स, तो इंटू 10,000 कर दोगे, डेसिमल हटा दो तो 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया तुम्हारे, फिर 1 जीरो से ये वाला जीरो गया, तो 26244/16 और इंटू 100 है, तो दिस बिकम्स इक्वल टू 2624400 डिवाइडेड बाई 16। क्या वैल्यू आएगा, 16 1 16 बचा 102, 16 6 96, 16425 मीटर स्क्वायर। ओके, एक सेकेंड 226 1 हो गया, 102 6 हो गया, ठीक है, 64 4 हो गया, फिर आएगा एक सेकेंड 025 आएगा, 164025। दिस विल बी द वैल्यू 164025 बिकॉज 1 हेक्टेयर इज 10,000 मीटर स्क्वायर, और ये डेफिनेटली हमारा 10 से ऊपर आ रहा था, तो कैलकुलेशन वहां से आइडेंटिफाई हुआ कि गलती कर रहे थे, ठीक है। तो 164025 मीटर स्क्वायर, क्लियर है, दिस विल बी द वैल्यू। अब क्वेश्चन कह रहा है कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग इट, सराउंड करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए हमको, पेरीमीटर चाहिए। एरिया तो मिल गया, बट एरिया से हम डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही पेरीमीटर पता चलेगा। एंड सिंस दिस इज स्क्वायर तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, 4a पता करना है, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 164025 दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो इफ यू अज्यूम ए इज इक्वल टू 400, तो 400 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 स्क्वायर 16 फॉलोड बाई 4 zeros, तो इसके आसपास की वैल्यू है, बिकॉज यहां पे भी 16 इज फॉलोड बाई 4 डिजिट्स, ठीक है। अगर हम ले 410 स्क्वायर तो वैल्यू क्या आएगा, 41 का स्क्वायर इज 1681, 1681, देखो 40 स्क्वायर इज 1600। अब 41 का स्क्वायर निकालना है तो एक तो तरीका है ये जिससे निकाल सकते हो, ठीक है, और अदरवाइज क्या है, 1600 में 1600 में ऐड कर दो 40 और 41, तो यहां से भी तुम्हें 41 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली n प्लस 1 स्क्वायर इज n स्क्वायर प्लस n प्लस n प्लस 1, या n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, वो तो फॉर्मूला पता ही है, n प्लस 1 स्क्वायर इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 में फोकस करो, यानी n प्लस n प्लस 1, 40 प्लस 41 या 40 इंटू 2 प्लस 1, जैसे भी कंफर्टेबल हो। तो 41 का स्क्वायर आ जाएगा 1681 फॉलोड बाई 20, दिस विल बी 410 का स्क्वायर। अब इनके बीच की वैल्यू आ रही है हमारी 164025, दिस इज बिटवीन दीज टू नंबर्स, इज दैट इट सो?
तो दिस विल डेफिनेटली बी 405 का स्क्वायर, बिकॉज यूनिट पे आ रहा है 5 और आ रहा है वैल्यू इंटीजर में, तो दिस विल बी 405 का स्क्वायर. ओके, सो दिस इज इक्वल टू 405 का स्क्वायर, यानी कि ए हमारा यहां से साइड लेंथ आ गया इक्वल टू 405. एंड हेंस कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग इट विद अ रेलिंग, दैट कॉस्ट विल बी इक्वल टू पेरीमीटर विच विल बी 4 into 405 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट पर मीटर विच इज 25 पैसा, यानी 0.25. तो 4 into 0.25 दे तो 1 आ जाएगा, तो यानी कि आंसर हमारा आ जाएगा 405 रुपीज ओनली. ऑप्शन डी विल बी द आंसर, 405 rupees. Okay, clear? Next question. A computer program was tested 300 times before its release. The testing was done in 3 stages of 100 tests each. The software failed 15 times in stage 1, 12 times in stage 2, 8 times in stage 3, 6 times in both stage 1 and 2, 7 times in both stage 2 and 3, 4 times in both stage 1 and 3, and 4 times in all the 3 stages. How many times the software failed in a single stage only? In a single stage only. तो वेन डायग्राम बना लेते हैं, बिकॉज क्वेश्चन डिजायर वही कर रहा है फॉर स्टेज 1, 2 and 3. Venn diagram of failures. And computer program was tested total 300 times. Testing was done in 3 stages of 100 tests each. Software failed 15 times in stage 1. In total 15 times fail किया है stage 1 है, 12 times in stage 2 and 8 times in stage 3. And then lastly 4 times in all 3 stages. तो ये फिलअप कर लेंगे सबसे पहले. Then it failed 6 times in both stages 1 and 2. 6 times in both stages 1 and 2. टोटल 6 टाइम्स फेल किया है इन बोथ स्टेजेस 1 and 2, बट इसमें ये 4 भी इंक्लूड होगा, तो ओनली 2 टाइम्स इन ओनली स्टेज 1 and 2. इज दैट इट सो? क्योंकि 4 टाइम्स तो सब में ही स्टेज में, सारी स्टेज में फेल किया है. 7 टाइम्स इन बोथ स्टेज 2 and 3. सो 4 टाइम्स तो सब में फेल किया था, तो 3 टाइम्स विल बी फॉर स्टेज 2 and 3 ओनली, एंड 4 टाइम्स इन बोथ स्टेज 1 and 3. तो ये तो 4 इंक्लूड करके, तो डेफिनेटली स्टेज 1 and 3 ओनली में एक बार भी फेल नहीं किया होगा, बिकॉज टोटल ऑल 3 स्टेज में 4 टाइम्स फेल किया है और 4 टाइम्स फेल किया है स्टेज 1 and 3 में, तो डेफिनेटली स्टेज 1 and 3 ओनली में 0 टाइम्स फेल किया है. अब बस 15 टोटल था स्टेज 1 में फेल्योर, 4 + 2 is 6, so this must be equal to 9. 12 टाइम्स फेल किया था टोटल स्टेज 2 में, तो 4 + 2 is 6 + 3 9, 3 टाइम्स इन ओनली स्टेज 2. 4 + 3 is 7, टोटल 8, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 1. तो 9 + 3 + 1, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है फेल्ड इन सिंगल स्टेज ओनली, तो यानी कि 9 + 3 + 1, this will be total 13. Option B will be the answer. Only one stage, only 2 stages, that is 5, 2 + 3 5, और all 3 stages तो given ही था 4, और टोटल फेल्योर कितना आ गया हमारा 13 + 5 18 + 4 22. Okay, 22. Next question. A and B throw one dice for a stake of ₹11, which is to be won by the player who first throws a 6. The game ends when stake is won by A or B. If A has the first throw, what are their respective odds of winning the game? Odds of winning the game. Odds के लिए पहले probability निकालते हैं, उसके बाद में odds calculate कर लेंगे. A and B throw one dice for a stake of ₹11, and which is won by the player who first throws a 6. Probability of throwing 6 क्या है? That will be 1 by 6. Probability of throwing a 6, that probability is equal to 1 by 6. The game ends or not throwing a 6, by na hai, not throwing a 6, that will be 5 by 6, 1 minus 1 by 6. ठीक है. Game ends when the stake is won by A or B. If A has the first throw, what are their respective odds of winning the game? अब देखो फर्स्ट थ्रो में A ने चांस लिया. अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? वन पॉसिबिलिटी इज दैट फर्स्ट थ्रो में A ने चांस लिया और फर्स्ट थ्रो में ही 6 आ गया, तो A जीत जाएगा. ठीक है, A जीत जाएगा. या फिर क्या हो सकता है, क्योंकि हम A के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहां से B के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी और रेशियोज मिल जाएंगे वहां से. ओके, सो A कैन विन ऑन द फर्स्ट चांस इटसेल्फ, और A थ्रोज द डाइस बट 6 नहीं आया,
तो नहीं जीतेगा। फिर बी खेलेगा, देन बी थ्रोज द डाइस, अगेन 6 नहीं आया तो बी भी नहीं जीतेगा। और फिर थर्ड टाइम में ए थ्रोज द डाइस और 6 आया था, तो ए विल विन द गेम। सो ए कैन विन द गेम ऑन द फर्स्ट थ्रो और द थर्ड थ्रो और द फिफ्थ थ्रो और द सेवेंथ थ्रो एंड सो ऑन। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, फर्स्ट चांस में ही जीत गए, या फिर थर्ड चांस में जीते, या फिर फर्स्ट चांस में ए ने थ्रो किया 6 नहीं आया, फिर बी ने थ्रो किया 6 नहीं आया, फिर ए ने थ्रो किया 6 नहीं आया, फिर बी ने थ्रो किया 6 नहीं आया, एंड ऑन द फिफ्थ चांस ए थ्रोज एंड 6 आ जाता है, तो ए विल विन दैट गेम ऑन द फिफ्थ चांस। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग विल बी इक्वल टू, फर्स्ट केस ए थ्रोज एंड 6 आ जाता है, सो दैट विल बी 1/6 प्रोबेबिलिटी प्लस, बिकॉज और इंप्लाइज प्लस। ए ने थ्रो किया फर्स्ट टाइम 6 नहीं आया, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 नॉट कमिंग एज द आउटकम, दैट विल 5/6। देन बी थ्रो डाइस और 6 नहीं आता है, अगेन 5/6 प्रोबेबिलिटी, एंड देन ए थ्रो डाइस 6 आ जाता है, 1/6 प्लस और इंप्लाइज प्लस, अगेन 5/6 into 5/6 into 5/6 into 5/6 into finally 1/6 and so on. This will be infinite GP. और फर्स्ट टर्म आ रहा है 1/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 to the power 4 into 1/6 and so on. So basically first term of the infinite GP is 1/6. So A upon 1 minus R, that will be sum of infinite GP, that is A upon 1 minus R first term divided by 1 minus common ratio, और common ratio क्या आ रहा है हमारा 5/6 to the whole square. So 1 minus 5/6 का whole square or 25/36. So this will be 1/6 upon 25/36, which becomes 36/6 into 25 or 6 upon 25, एक सेकेंड, सॉरी 1 minus 25/36 था, तो this will be 6/11. Finally this will be 6 upon 11. Okay, so probability of A winning the game, this is equal to 6/11. तो 6 are the chances जबकि A जीतेगा, 11 are total chances. ठीक है, so probability of A winning is 6/11, यानी कि आउट ऑफ 11 टाइम्स 6 टाइम्स A will be winning. 11 टाइम्स अगर हमने गेम खेला तो चांसेस आर कि 6 टाइम्स तो A जीतेगा, बचे हुए 5 टाइम्स B जीतेगा। ठीक है, तो ऑड्स ऑफ A एंड B रिस्पेक्टिव ऑड्स क्या होंगे, ऑड्स ऑफ A विनिंग इज टू ऑड्स ऑफ B विनिंग। तो अगर 11 टाइम्स गेम हुआ, ठीक है, रफली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, देखो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं 11 टाइम्स गेम होगा तो एक्चुअल में हो सकता है 9 टाइम्स जीत जाए, डिपेंड करता है, बट अगर तुम इन्फिनिटी मेनी टाइम्स खेलोगे तो डेफिनेटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ A विनिंग विल बी 6/11। ठीक है, तो ऑड्स ऑफ A विनिंग विल बी 6 यूनिट्स आउट ऑफ 11 and odds of B winning will be 5 units out of 11. So 6:5 will be odds of their respective victory. Okay, 6:5. Option B will be the answer. Is this clear? Also, since गेम में दोनों के जीतने का चांसेस इक्वल था, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिंस A is starting the game, सिंस A is starting, जो भी स्टार्ट करेगा, और दोनों के लिए क्योंकि रूल सेम है, जैसे ही 6 आ जाएगा गेम खत्म हो जाएगा, तो डेफिनेटली जो स्टार्ट करेगा ही विल आल्सो ऑलवेज बी एट एन एडवांटेज, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम विनिंग द गेम विल बी ऑलवेज मोर देन 1.5 नहीं 1/2 और 0.5. ठीक है, सो ही विल ऑलवेज हैव अ चांस ग्रेटर देन 50% ऑफ विनिंग द गेम, बिकॉज वो स्टार्ट कर रहा है, तो स्टार्ट करने वाले को हमेशा एक एडवांटेज रहेगा। इज दैट क्लियर? दैट इज वाई डेफिनेटली ऑड्स जो हमारे होंगे उनमें ऑड्स ऑफ A विनिंग विल बी हायर देन ऑड्स ऑफ विनिंग बाई B। तो इवन इफ हमने सॉल्व नहीं किया होता तो हमें पता था कि ऑप्शन A तो आंसर नहीं हो सकता था, बिकॉज A स्टार्टिंग द गेम, तो उसके ऑड्स ज्यादा होंगे, और सिमिलरली D भी आंसर नहीं हो सकता था, आंसर मस्ट हैव बीन बिटवीन B एंड C। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, सो उतना तो हम बिना सॉल्व के भी समझ में आना चाहिए कि अगर कोई गेम स्टार्ट कर रहा है, एज लॉन्ग एज रूल्स दोनों के लिए सेम है, रूल्स दोनों के लिए सेम है, तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ दैट पर्सन विल बी हायर हु इज स्टार्टिंग द गेम। ओके, रूल्स ही अगर मुश्किल हो तो फॉर एग्जांपल अगर A के लिए रूल ये होता कि यू विल बी विनिंग द गेम इफ यू गेट 6 एज एन आउटकम, और B के लिए रूल ये होता कि 6 ना आए बाकी कुछ भी आ जाए तुम जीत जाओगे, तो फिर रूल्स दोनों के लिए बराबर नहीं हुए। इज दैट इट सो? बिकॉज A के जीतने की प्रोबेबिलिटी हुई 1/6 रैंडमली, और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, तो उसके चांसेस ज्यादा है, B के जीतने के फिर चांसेस ज्यादा हो जाएंगे इवन इफ वो सेकंड टाइम गेम में आए, तो डेफिनेटली फिर वहां पे रूल्स डिफरेंट हो गए। As long as rules are same, तो definitely the person that is starting will always be having advantage. If rules are different, तब फिर बात अलग हो जाती है। Okay, clear है? Next question. If sum of the first 11 terms of an arithmetic progression equals that of the first 19 terms, then what is the sum of the first 30 terms? First 30 terms का sum क्या होगा in that situation?
सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 19 टर्म्स. नेक्स्ट 19 नहीं है, फर्स्ट 19 का ही है. तो सम ऑफ 11 इज इक्वल टू सम ऑफ 19. ओके, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं ए और डी का, क्योंकि कुछ भी और तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. अच्छा, क्योंकि कुछ भी और गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड. अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में गिवन होता तो भी आंसर हो सकता था, बिकॉज हमें यहाँ से न तो कॉमन डिफरेंस के बारे में कुछ पता है, न फर्स्ट टर्म के बारे में कुछ पता है. हाँ, रिलेशनशिप कोई इक्वेशन मिल जाएगा हमको प्रॉब्ली, बट क्योंकि कोई एब्सोल्यूट वैल्यू कहीं पे भी गिवन नहीं है, सारी बातें टर्म्स के बारे में कही गई हैं, तो हम डेफिनेटली यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस या फिर फर्स्ट टर्म रिलेशनशिप के अलावा एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं निकाल सकते. मुश्किल एग्जैक्ट वैल्यूज निकालना कि कैसे निकलेगा, क्योंकि कहीं पे भी हमें कोई रिलेशनशिप के अलावा कुछ भी गिवन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ये नहीं गिवन है कि फर्स्ट 10 टर्म्स का सम जो है वो 19 है या कोई और नंबर है, तो क्योंकि कोई नंबर गिवन नहीं है तो प्रॉब्लम हम यहाँ से रिलेशनशिप ही निकाल पाएंगे और कुछ नहीं निकाल पाएंगे. बट क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है हमसे आंसर, तो चांसेस यार कि रिलेशनशिप अगर निकल रहा होगा तो वहां से या तो आंसर 0 आ रहा होगा या नॉट यूनिक वाला केस बन रहा होगा, बिकॉज 1 या -1 आने के लिए हमें कुछ तो और चाहिए, एडिशन. सो 0 तो तब आता है जबकि चीजें कैंसिल आउट हो जाती है, तो चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, वैसा चांस बना तो डेफिनेटली 0 आंसर आ सकता है, या फिर नॉट यूनिक आंसर आ सकता है अगर हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, कैन नॉट डिटरमाइन वाला केस हुआ तो. ओके, देखते हैं. तो सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला आ जाएगा 11/2 इंटू 2a प्लस n-1 टाइम्स डी, यानी कि 10d, एंड दैट इज इक्वल टू 19/2 इंटू 2a प्लस 18d. सो दिस बिकम्स 11 इंटू a प्लस 5d, 19 इंटू a प्लस 9d. तो दिस विल बी 8a इज इक्वल टू 55d माइनस 171d, यानी -116d. 4 से जाएगा, दिस विल बिकम 29. तो a विल बी इक्वल टू -29d/2, या कह सकते हैं कि 2a इज इक्वल टू -29d, और दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस 29d, दिस इज इक्वल टू 0. और सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 30/2 इंटू 2a प्लस 29d, एंड दिस इज इक्वल टू 0. सो ये सम भी 0 आ जाएगा. ऑप्शन ए विल बी द आंसर, दैट दिस विल बी इक्वल टू 0. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ये तो हो गया मेथड नंबर 1. बट इन जनरल अगर ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है जहां पे गिवन है सम ऑफ फर्स्ट ए टर्म्स ऑफ ए पी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट बी टर्म्स, और ए और बी इक्वल नहीं है, ठीक है, इन जनरल अगर गिवन है सम ऑफ फर्स्ट ए टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट बी टर्म्स, एंड ऑब्वियसली ए एंड बी आर नॉट इक्वल, बिकॉज ए और बी इक्वल है तो मतलब ही क्या है, फिर तो सेम ही है, फिर तो बात एक ही है. सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो तो हमेशा ही होगा. ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट ए टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट बी टर्म्स, इफ दैट इज गिवन देन डेफिनेटली सम ऑफ फर्स्ट ए प्लस बी टर्म्स दिस विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ पे 11 प्लस 19 यानी सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, दिस विल ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, फॉर एन एपी. ओके, या फिर ऐसे समझ सकते हो, देखो सम ऑफ 19 टर्म्स अगर सम ऑफ 11 टर्म्स के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ 19 टर्म्स इन जनरल इज इक्वल टू सम ऑफ 11 टर्म्स प्लस टर्म नंबर 12 प्लस टर्म नंबर 13 प्लस टर्म नंबर 14 15 16 17 18 एंड 19. बट अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ इन सारे के सारे बाकी टर्म्स का सम क्या है, दिस इज 0. इन सारे टर्म्स का सम 0 है, isn't it so? इन सारे के सारे टर्म्स का सम 0 है, और अगर इन सारे के सारे टर्म्स का सम 0 है तो यानी कि इनका एवरेज वैल्यू क्या होगा, एवरेज भी 0 होगा. अगर इन सारे टर्म्स का सम 0 है तो एवरेज भी तो 0 होगा, और अगर एवरेज 0 है, एवरेज कहां पे आएगा, एग्जैक्टली मिडिल में, यानी कि टर्म नंबर 15.5 या 15 और 16 टर्म का एवरेज, टर्म नंबर 15.5 दिस विल बी 0. और जब हम 30 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं तो 30 टर्म्स का एवरेज क्या होगा, एवरेज ऑफ 30 टर्म्स विल बी टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 30 डिवाइड बाई 2, यानी कि 30 प्लस 1/2 टर्म नंबर 15.5, और वो तो आ रहा है 0 क्योंकि एवरेज 0 आ रहा है. तो यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0. क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्लियर है? अदरवाइज ये तो समझ कि याद तो रख ही सकते हो. ओके, क्या ये पार्ट क्लियर है? Okay. Next question. And a person stand
On the circumference of a circle at distinct points, each possible pair of persons not standing next to each other sings a 2-minute song, one pair after the other. If the total time taken for singing is 28 minutes, तो n की वैल्यू क्या होगी? n persons are standing on the circumference of a circle at distinct points, and each possible pair of persons not standing next to each other sings a 2-minute song, one pair after the other. अब देखो कभी भी अगर लेट अस से n की तो बात बाद में करेंगे, पहले हम करते हैं लेट अस से हमने 4 पर्सन्स को खड़े हुए हैं, ठीक है, या 5 है मान लो, एंड लेट अस से दिस इज द पर्सन जहां से कि हम काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं. तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे ईच पॉसिबल पेयर ऑफ पर्सन नॉट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि इसके जो नेबरहुड वाले पर्सन हैं इनको काउंट नहीं करना है. तो एक तो खुद काउंट नहीं होगा क्योंकि अपने आप मतलब खुद तो है ही है पेयर में, बट पेयर के लिए दूसरा पर्सन हमें ढूंढना है ना, तो दूसरा पर्सन जो ढूंढ रहे होगे, अगर टोटल n पर्सन होंगे तो n में से एक तो खुद पर्सन नहीं होगा, देन एक तो वो खुद नहीं हुआ तो एक तो हमने पहले हटा दिया, फिर ये 2 नेबर्स हो गए उसके, इनको भी काउंट नहीं करोगे. तो बचे हुए पर्सन कितने बचे? n-3. सो फॉर एवरी पर्सन देयर विल बी n-3 पर्सन जिनके साथ उसका पेयर बनेगा. फॉर एवरी पर्सन देयर विल बी n-3 पर्सन. तो अगर n-3 होगा एक के लिए, n के लिए हो जाएंगे n इंटू n-3 पेयर्स हो जाएंगे. बट ध्यान ये रखना है कि अगर a का b के साथ पेयर बना रहे हो तो एक बार a के साइड से b का काउंट किया, एक बार b के साइड से a को काउंट किया, डबल काउंटिंग हो जाएगा, तो डिवाइड बाई 2 भी करोगे. तो n इंटू n-3/2 दिस विल बी टोटल नंबर ऑफ पेयर्स. टोटल नंबर ऑफ पेयर्स. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि n में से किसी भी 2 को चूज कर लो, nc2 नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, बट इनमें से तुम्हारे जो नेबर वाले पेयर्स होंगे उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो वाले पेयर्स हमें चूज नहीं करने हैं. ऐसे कितने पेयर्स होंगे? ऐसे पेयर्स होंगे हमारे टोटल n. भाई अगर टोटल 10 पर्सन थे तो 1 और 2, 1 and 3, 1 और 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5 और लास्ट में 10 and 1, तो टोटल 10 पेयर्स बनेंगे nc2 या n पेयर्स बनेंगे. तो nc2 माइनस n विच इज ऑलवेज इक्वल टू n इंटू n-3/2. ओके, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40. 28 मिनट्स टोटल सॉन्ग हो रहा है और 2 मिनट्स का एक सॉन्ग है, तो इज इक्वल टू 28/2. So n into n-3 is equal to 28, which is 7 into 4, and hence n is equal to 7. Option B is the answer. N is equal to 7. Clear? Next question. Alfonso on his deathbed keeps half his property for his wife. तो अल्फोंसो की वाइफ को he is giving half his property and dividing the rest equally among his 3 sons Ben, Carl and Dave. तो among B, C, D he is dividing the rest of half property. तो हाफ का 3 हिस्से करोगे तो कितना मिलेगा? B को मिलेगा 1/6, C को मिलेगा 1/6, D को मिलेगा 1/6. ओके, क्लियर? Some years later Ben dies leaving half his property to his widow. तो Ben is giving half his property to his widow and then half to his brothers Carl and Dave together. तो बचे हुए हाफ को डिवाइड करेगा बिटवीन कार्ल एंड डेव. तो कार्ल को मिलेगा 1/4, डेव को मिलेगा 1/4. बस ये किसका है? द प्रॉपर्टी दैट वाज विद बेन, उसका 1/4 एंड 1/4. इजंट इट सो? ठीक है. देन आफ्टर दैट व्हेन कार्ल मेक्स हिज विल ही कीप्स हाफ हिज प्रॉपर्टी टू हिज विडो एंड द रेस्ट ही bequeaths टू हिज यंगर ब्रदर डेव. तो कार्ल भी यही कर रहा है. कार्ल्स 5 will be getting half the property of Carl and then Dave will be getting half the property. Finally, when Dave dies after some years, he keeps half his property for the widow and the remaining for his mother. So Dave's wife को 1/2 और Dave's mother को भी 1/2. ओके, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? 1/6. ठीक है, 1/6 स्मॉलेस्ट पार्ट है. सेकंड टाइम स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? 1/4. ओके, थर्ड टाइम है 1/2. फोर्थ टाइम है 1/2 स्मॉलेस्ट पार्ट. और स्मॉलेस्ट पार्ट पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू एज्यूम करेंगे और वहां से सारी चीजों को अच्छे से लिखना शुरू करेंगे. तो वर्स 1/6 है स्मॉलेस्ट पार्ट, यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, हम जो अपना नंबर एज्यूम कर लेंगे स्टार्टिंग नंबर 6 4 2 2, तो नंबर हमारा हो जाएगा 6 into 4 into 2 into 2. तो स्टार्टिंग नंबर शुड बी 96. विल स्टार्ट विद द नंबर 96. लेट अस से कि टोटल प्रॉपर्टी विद अल्फोंसो टू स्टार्ट विद इज 96. ओके, total property with Alfonso to start with, let us say that is equal to 96. ठीक है, अब क्योंकि अल्फोंसो हो, बेन हो, कार्ल हो, डेव हो, ऑल आर गिविंग देयर प्रॉपर्टीज टू देयर वाइफ्स आफ्टर द डेथ, तो एक तो कॉलम उनके लिए बना लिया सेपरेटली. देन फॉर B, C, D, Ben, Carl, Dave.
A, B, C, D. So let us say Alfonso का property total is 96. Total is 96. 6 into 4 into 2 into 96 है. So Alfonso will be giving half his property to his wife. तो 96 का half will be 48. And remaining 48 का one third मिल जाएगा to Ben, Carl and Dave. तो 16, 16 and 16 will be given to Ben, Carl and Dave. Okay. Now some years later Ben dies leaving half his property. तो जब Ben की डेथ हो रही, Ben के पास प्रॉपर्टी कितना है? 16 है. 16 है. So out of this 16 he is giving half his property to his widow, Ben's widow. So 16 का half will be 8 and remaining half will be distributed between Carl and Dave. तो 16 का हाफ 8 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वाइफ को और 8 का हाफ यानी 4 and 4 will be given to Carl and Dave. Total is 16 in this case. Fine. Now when Carl dies or Carl makes his will, तो Carl के पास प्रॉपर्टी कितना है? 16 plus 4 20 है. 20 है. तो half of the 20 will be given to his widow. तो 10 will be given to his widow and remaining 10 will be given to Dave. Now when Dave dies, तो Dave के पास प्रॉपर्टी कितना है? 16 plus 4 plus 10, this is 30. 30. Out of this 30, 15 is given to Dave's widow. Isn't it so? 15 is given to Dave's widow and then remaining 15 is given to his mother, यानी कि Alfonso's widow. तो 48 plus 15. तो अब इसके बाद में फाइनली क्वेश्चन इज सेइंग द मदर नाउ हैज रुपीज 15,75,000. सो 48 plus 15 63 यूनिट्स की वैल्यू हमें मिल गया एंड दैट इज इक्वल टू 1575,000,000. सो व्हाट इज द वर्थ ऑफ टोटल प्रॉपर्टी? 7 से सिंप्लीफाई हो रहा होगा. 7 2s are 14, 225,000,000. then 9 से सिंप्लीफाई होगा, दिस विल बी 25,000. Okay, 25,000 is 1 unit or total 96 units. 96 into 25k. This will be 24 lakhs. Total property will be 24 lakhs. Option C will be the answer. Okay. हाँ, बिना क्वेश्चन किए हुए अगर हम करने की सोचते तो यहाँ से एक दो ऑप्शन एलिमिनेट तो कर सकते थे, बट सॉल्व नहीं हो पाता है क्योंकि हमें ये पता था मदर के पास में जो प्रॉपर्टी है दैट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 50%, बिकॉज मदर को अल्टीमेटली अल्फोंसो ने ही हाफ द प्रॉपर्टी तो अपनी वाइफ को दे ही दिया था और इसके बाद फाइनली डेव ने दी है प्रॉपर्टी अपनी हाफ. तो हाफ प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मदर को मिला हुआ था, तो मदर को जो अमाउंट मिला होगा दैट वाज ग्रेटर देन 50%, यानी कि जो एक्चुअल अमाउंट है दैट विल बी लेस देन डबल ऑफ दैट, यानी 15,75,000 डबल से कम होगा, यानी कि 32 लाख तो आंसर नहीं होता. बट बाकी तीन में से कोई भी आंसर हो सकता था डिपेंडिंग अपॉन कि अल्टीमेटली कितना प्रॉपर्टी मिल पा रहा है या डेव से कितना मिल रहा है मदर को. ओके, क्लियर है. और उसके लिए फिर हमें पूरा टेबल तो बनाना पड़ता. क्या अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मैन बोरोज रुपीज 6,000 at 5% interest on reducing balance at the start of the year. If he repays rupees 1,200 at the end of each year, find the amount of loan outstanding in rupees at the beginning of the third year. क्या अमाउंट होगा? तो इज स्टार्टिंग बोरोइंग रुपीज 6,000 at 5% interest. तो रुपीज 6,000 he has borrowed at the start of the year on reducing balance. ठीक है. इफ रिपेज रुपीज 1,200 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, तो ईयर के एंड में कितना इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा? 5% इंटरेस्ट है. तो इंटरेस्ट ड्यू will be 5% of 6,000. 5% will be 10% is 600, 5% will be 300. तो 10% अमाउंट will be due at the end of first year. ठीक है. तो प्लस 300 हो गया. और सिंस ही इज पेइंग रुपीज 1,200 एट द एंड ऑफ द ईयर, 1,200 पे कर देगा, तो कितना अमाउंट बच जाएगा? अमाउंट ड्यू. ठीक है. दिस इज एट द एंड ऑफ द ईयर, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. तो सेकेंड ईयर के स्टार्ट में अमाउंट कितना बचेगा ड्यू? 6,000 प्लस 300, 6,300 माइनस 1,200, तो 5,100 इज द अमाउंट ड्यू नाउ. नो इंटरेस्ट ड्यू फॉर द सेकेंड ईयर विल बी 5% ऑफ 5,100, 10% इज 510, तो 255 विल बी इंटरेस्ट ड्यू minus amount that he will be paying 1,200 rupees. तो at the start of the third year कितना अमाउंट ड्यू बचेगा?
5,100 minus 1,200 will be 3,900 plus 255, 4,155 rupees. This is the amount at the beginning of the third year. और वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 4,155 rupees will be the answer, option B. Option B will be the answer. Clear है? Okay, so these are all the questions from the practice set number 2 of this year. I believe जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट रहता है तो make sure to comment about that doubt. And if you like the session, then make sure to hit the like button as well. Hit the like button as well. Okay. Or if you have not already subscribed to the channel and you like the content, then subscribe to the channel as well as press the bell icon. You can also join the Telegram channel Methodological, or you can message me on Telegram at ADITYAKT for any questions or queries. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep learning.